Hello students, good morning. This is Barkha Gaur from Shiv Jyoti Educational Group Kota, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine at your places. You are doing well and going through all the revision videos. So students, today we are going to revise chapter 10 of class 11th biology, that is cell cycle and cell division. Children, I hope you have already watched the video, which is the complete video of this chapter. So before watching this, I suggest you to watch that video also, so that you can go through all the details of the chapter. And in this video, we are going to revise the important points which are coming in this chapter. So students, open your book, page number 162, chapter 10, cell cycle and cell division. So to students, as you know already, the cell cycle means the events which are taking place during the when the cell is going to divide and during the divide also. तो जब भी cell divide होता है तो what are the events which are taking place, they are included under the cell cycle. तो phases of cell cycle we will discuss, like interphase, G1 phase, synthesis phase and G2 phase. Children, on page number 163, the diagram is given which is showing all the events of cell cycle. So practice this diagram also. This is the diagrammatic view of cell cycle indicating formation of two cells from one cell. So actually होता क्या है, when the cell is going to divide, it undergoes, first of all, it undergoes interphase. Interphase is the phase in which cell prepares for division. तो पूरी तैयारी करता है इस वक्त वो division की. And the duration of cell cycle या cell division की जो duration होती है, it is different in different organisms. Interphase includes three parts, like one is G1 phase, synthesis phase and G2 phase. Now what happens in G1 phase? G1 phase indicates the growth of the cell, that means cell increase in size. Then in synthesis phase, the DNA duplication occurs. Page number 163 पर all the phases are given in detail. You can go through it and mark the important points also. So G1 phase is given. G1 phase is about the growth of the cell and synthesis phase में क्या होगा, DNA का duplication होगा, and G2 phase is for protein synthesis. So these things are coming under the interphase. Now sometimes the cell does not undergo further division and it goes in a resting stage. अगर cell further divide ना होकर resting stage पे चला जाता है तो that stage is known as G0 phase, that is also known as quiescent stage. Now we'll learn about the M phase. M phase means mitosis, the main division which is through which the cell is going. So M phase means mitosis. M phase contains two parts, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis क्या होता है? The division of nucleus, and cytokinesis is the division of cytoplasm. तो पहले क्या होगा? Karyokinesis, that is division of nucleus. तो हम nucleus के अंदर की बात पढ़ेंगे. This karyokinesis is further divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Children, in detail, जब हमने detail video देखा था, उसमें आपने with diagram मैंने आपको पूरा with the animation I explained you the whole chapter. Now we are just going to revise in short. Prophase means the first phase. You can refer to the diagram given on page number 165. Metaphase के सारे stages के diagrams दिए हुए हैं. तो prophase में क्या होता है? The nuclear membrane जो है वो disintegrate होना शुरू हो जाती है, means disappear होना शुरू हो जाती है. And the chromosomes जो पहले chromatin network के form में थे, now they appear as chromosomes. उनका condensation हो जाता है, thick हो जाते हैं वो. Now the chromatin material is converting into chromosomes. तो ये starting होती है prophase में. Second, metaphase में जो chromosomes appear होने लग गए थे, they appear to arrange on the equator of the nucleus. तो आप diagram में भी देख सकते हो. Figure 10.2 A and B, these diagrams are given in which you can see early prophase, late prophase, then transfer to metaphase and metaphase. तो metaphase हम ध्यान रख सकते हैं कि metaphase plate का formation होता है and the chromosomes arrange themselves on the equator of the nucleus, मतलब center में सारे align हो जाते हैं. That is the formation of metaphase plate takes place. Then anaphase में क्या होगा? The nucleus के जो chromosomes हैं उनमें जो centromere है उनसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो ही जाते हैं. तो आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं. उससे अटैच होने के बाद
जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ पुल होने लग जाते हैं, मीन्स जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे पुल द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 166 फिगर 10.2 सी, दैट इज द एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल। नाउ एज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज, टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड होकर कंप्लीटली दे रीच टू द अपोजिट पोल। एनाफेज में तो स्टार्टिंग हो रही थी एंड टीलोफेज में द क्रोमोसोम्स जो अपार्ट हो गए, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे मूव या दे कंप्लीटली रीच टू द अपोजिट पोल्स एंड अलॉन्ग विद दैट और क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, अब टू पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो रीअपियर्स। ऐसे ही जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं बाकी वो भी रीअपियर होने लग जाते हैं एंड वी कैन सी दैट न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जैसे ही टीलोफेज खत्म होने लगता है द साइटोकाइनेसिस ऑल्सो स्टार्ट्स। साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म भी साथ साथ में स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द साइटोकाइनेसिस इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, प्लांट में अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होता है और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से। एनिमल्स में क्या होता है, द सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन है वो आसपास से मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डिवाइड होना शुरू होगी, जबकि प्लांट सेल में इट स्टार्ट्स, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। Now what is the significance of mitosis? The main significance of mitosis is the growth of the organism. Cell divide होगा तो number of cells increase होंगे and the organism itself will increase in size. तो you can see on page number 167. तो mitosis generally होता कब है, diploid cells में, और mitosis की ये characteristic है कि the new cells formed from the mitosis, through the mitosis it will contain the same number of chromosomes. यहाँ पे chromosomes के number equal रहेंगे, तो mitosis is the equational division because the number of chromosomes remain same in the parent cell as well as in the daughter cells. Now we move to the second type of division, that is meiosis. तो mitosis में same number of chromosomes थे, but meiosis से जब division होगा तो the newly formed cells will have half the number of chromosome as compared to parents. Parents में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, कब, जब meiosis से सेल डिवाइड होगा। तो दिस meiosis डिवीजन जनरली मतलब इट स्पेशली ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये डिवीजन कब होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, जब भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जब गैमेट्स बनते हैं तब meiotic डिवीजन होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ दिस meiosis. तो meiosis इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। कैसे कि माइटोसिस में तो एक ही बार सारा डिवीजन हो गया था, बट meiosis में meiosis 1 एंड meiosis 2। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टेजेस ऑफ meiosis 1। अब जैसे माइटोसिस में प्रोफेज था, meiosis में meiosis 1 का जो प्रोफेज 1 है इट इज वेरी लेंथी एंड इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। तो यू कैन सी वन बाय वन। जैसे फर्स्ट है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, for this you open page number 168. You can see in your book page number 168 पे प्रोफेज 1 जो कि बताया गया है इतने स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, सबसे पहले इट बिकम्स, दैट मीन्स द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, जैसे कि प्रोफेज में हो ही रहा था, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा एंड देन इट मूव्स टू द, या इट रीचेस टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज जाइगोटिन। अब जाइगोटिन में क्या होगा, द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। ठीक है, पेयरिंग बनने लग जाएगी एंड जो बायवैलेंट की तरह से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में पेयरिंग बनाते हैं एंड दोज पेयर्स ऑल्सो फॉर्म टेट्राड ऑल्सो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जाइगोटिन स्टेज में सिनेप्सिस बनता है। सिनेप्सिस दैट मीन्स द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एंड सिनेप्सिस से जो पेयरिंग हुई है उसको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जाइगोटिन स्टेज में ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट। और क्योंकि दो सेट्स होंगे यहाँ पे तो उसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। नाउ जो फर्स्ट टू स्टेजेस थी ये थोड़ी शॉर्ट है। अब हम आते हैं पेकाइटिन पे। द नेक्स्ट स्टेज इज पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा, द 4 क्रोमेटिड्स जो हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के, ये डिस्टिंक्टली अपीयर हो जाते हैं, वेरी क्लियर हो गए हैं यहाँ पे
एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन देम। क्रॉसिंग ओवर मैंने डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने समझाया था। जो क्रोमोसोम्स हैं दे कम क्लोज एंड इस तरह से क्रॉस ओवर होते हैं। क्रॉस ओवर होंगे तो क्या होगा, जो कैरेक्टर्स हैं या जो जीन्स हैं वो न्यू कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जब ये अलग होंगे तो इनमें न्यू कॉम्बिनेशंस विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड। तो दिस इज व्हाट क्रॉसिंग ओवर स्टेज होती है। और द पार्ट फ्रॉम वेयर क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड, ये जो एक्स जैसा शेप बन जाता है इसको चियाज़्मेटा कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज चियाज़्मेटा। तो दीज थिंग्स, दीज चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज को हम ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होने लग जाता है। डिसोल्यूशन मीन्स जो डिसॉल्व होने लग जाएंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, मीन्स द क्रोमोसोम्स विल गेट सेपरेटेड। यहाँ पे ये आपस में सेपरेट होना शुरू कर देंगे। जो चियाज़्मेटा है वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाएगा। एंड द फाइनल स्टेज इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्मेटा, मीन्स द चियाज़्मेटा विल कंप्लीटली एंड अप हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। तो दिस वाज, ये क्या था, पूरा प्रोफेज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेयोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है इट इज क्वाइट लेंथी। नाउ आफ्टर दीज स्टेजेस, प्रोफेज 1 के बाद हम आते हैं मेटाफेज 1 में। तो नाउ यू कैन सी कि प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद अगेन मेटाफेज 1 में क्या होगा, द क्रोमोसोम्स विल गेट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर में सब अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। देन एनाफेज 1 में द स्पिंडल फाइबर विल पुल द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। एंड टेलोफेज 1 में कंप्लीटली उनका डिवीजन हो चुका होगा एंड द क्रोमोसोम्स विल रीच टू द अपोजिट पोल्स। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा मेयोसिस 1। नाउ मेयोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज द माइटोसिस, ठीक है। मेयोसिस 2 में वैसे ही होगा। अभी क्या हुआ था, यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म हुए थे। मेयोसिस 1, एज अ रिजल्ट ऑफ मेयोसिस 1 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। नाउ अगेन दोज 2 सेल्स विल फॉर्म 2 मोर सेल्स। तो एट द एंड ऑफ मेयोसिस वी विल गेट 4 सेल्स, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। आप देखिए पेज नंबर 169 पे फिगर 10.3। दिस इज मेयोसिस 1 and on next page you can see meiosis 2. So at the end of, you can see at the end of the meiosis 4 haploid cells are formed. Meiosis 2 discuss कर लेते हैं. It contains prophase 2. Again the nuclear membrane will start dissolving या disappearing होना शुरू हो जाएगी and the chromosomes again become compact, distinct and compact हो जाते हैं. Metaphase 2 में again those chromosomes will get arranged on the equator एंड मेटाप्लेस प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे. देन एनाफेज 2 में अगेन स्पिंडल फाइबर विल पुल द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ईच पोल एंड टेलोफेज में कंप्लीटली दे रीच टू द अपोजिट पोल्स एंड द सेल मेम्ब्रेन का या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट मेयोसिस 2. नाउ विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस आल्सो. सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेयोसिस ओनली. तो गैमेट्स जो होंगे वो मेयोसिस के थ्रू ही बनते हैं. द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस्ड. नाउ व्हाट हैपेंस कि जो मेयोसिस से बने हैं सेल्स दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऐसा क्यों? सो दैट व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस इन फ्यूचर दे विल अगेन इंश्योर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने कि पेरेंट्स में थे. अगर यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं बनते सेल्स तो क्या होता, डबल हो जाते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो मेयोसिस में गैमेट फॉर्मेशन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे. नाउ वी कैन कंपेयर माइटोसिस एंड मेयोसिस कि जैसे कि माइटोसिस में क्या हो रहा था, द सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे रिमेन इक्वल इन पेरेंट सेल्स ऑल्सो एंड इन द न्यूली फॉर्म सेल्स ऑल्सो. तो इट वॉज एन इक्वेशनल डिविजन, जबकि मेयोसिस कैसा है, रिडक्शन डिवीजन है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ. माइटोसिस जैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें माइटोसिस होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में भी होगा, लेकिन जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो कॉमन जनरल सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होगा, बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मेयोसिस होता है. माइटोसिस से बने हुए सेल्स में कोई जेनेटिकली चेंज नहीं आता है, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, बट मेयोसिस में
क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं, एंड दीज वेरिएशंस ओनली लीड टू इवोल्यूशन, या जितना भी हम वेरिएशंस देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑल्सो। तो सर्वाइवल में भी मेयोसिस डिवीजन से हेल्प मिलता है। सो चिल्ड्रन, these were the important points of this chapter. Now we'll discuss the question answers of this chapter. So question number 2 we are discussing, like distinguish between cytokinesis and karyokinesis. So cytokinesis is the division of cytoplasm, whereas karyokinesis is the division of nuclear material. In the last step of the cell division, it requires completion of karyokinesis. तो पहले तो क्या होता है, karyokinesis होता है, then after it cytokinesis. There are no stages, no well demarcated stages of cytokinesis are we are studying, but karyokinesis जैसे हमने देखा माइटोसिस में, मेयोसिस में, there are well demarcated stages. तो इसमें अलग अलग stages होती हैं. Next question, describe the events taking place during interphase. तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, इंटरफेज में क्या क्या स्टेजेस थी, G1, S and G2 phases. तो you have to go through these division. जैसे G1 stands for gap 1 phase and this is the duration between mitosis and initiation of DNA replication. तो इनके बीच का जो phase है और इसमें क्या होता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है. सेकेंड इज सिंथेसिस फेज, दैट मीन्स दिस फेज इज आइडेंटिफाइड बाय द डीएनए रेप्लिकेशन. तो इस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. इफ द इनिशियल क्रोमोसोम नंबर 2n थे एंड डीएनए कंटेंट वाज 2c, एट द एंड ऑफ s फेज द डीएनए कंटेंट विल बिकम 4c. तो इन दिस वे डीएनए का सिंथेसिस होगा. G2 फेज इज आइडेंटिफाइड बाय प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसमें मेनली क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is G0 phase? So as I told you, when the cell is not does not likely to go in the next division, तो वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है, जो कि इनएक्टिव स्टेज है, एंड दिस इज कॉल्ड एज G1 या इसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं. या समटाइम्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज नॉट फेवरेबल, तो दैट टाइम आल्सो द सेल अंडरगो G0 phase. Why is mitosis called equational division? I told you कि the number of chromosomes remain same in the newly formed cell. That's why the mitosis is called equational division. How does cytokinesis in plant differs from that in animal cells? तो plant cells में क्या होता है, सेल जो डिवाइड होता है या साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है वो सेंटर से स्टार्ट होकर बाउंड्री की तरफ जाता है, जबकि एनिमल सेल में आसपास से पेरिफेरी से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ डिवाइड होना स्टार्ट होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल कितने बचते हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट कितना होता है. तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट नंबर ऑफ सेल्स n है तो 2n हो जाएंगे. एज द डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, माइटोसिस में 2n का 2n ही रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिससे कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एट विच दीज इवेंट्स आर ऑकरिंग. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, स्टेज कौन सी है. तो क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, तो दैट इज मेटाफेज स्टेज. Centromere splits and chromatids separate, so it occurs in anaphase stage. Then pairing of homologous chromosomes takes place, तो वो zygotin में होता है, meiosis के zygotin में होता है. Then crossing over between homologous chromosomes takes place in pectitin of meiosis 1. Next question, describe the following. तो ये important है, जैसे synapses, what is synapses, what is bivalent and what is chiasmata. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेप्सिस, तो क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जब होती है तो उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं. दैट मीन्स द डीएनए ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अलाइंड एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द zygotin ऑफ प्रोफेज 1. बायवेलेंट में क्या होगा, द बायवेलेंट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, बिकॉज देयर आर 2 क्रोमोसोम्स इन क्लोज एसोसिएशन, तो इसलिए उसको हम बायवेलेंट कहते हैं. और उसको टेट्राड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमेटिड्स कितने हो जाते हैं उस वक्त, 4 chromatids हो जाते हैं. So children, these were the some of the important questions of this chapter. Keep revising all the question answers. Watch all the videos properly so that you can prepare well for the exam. So children, take care. Goodbye. All the best.